Good morning, one and all. सर वॉइस फट रहा है। Hello. Is my voice clear now? नो सर। Hello. सर अभी भी वॉइस फट रहा है सर एकदम। बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है। और सर बैकग्राउंड का भी वॉइस आ रहा है, वो बहुत ही ज्यादा। Okay. Is my voice clear now? No, sir. नो सर। Just a minute. Okay. His screen is visible to everyone. यस सर। यस सर, स्क्रीन विजिबल है। Yes, आप sir. आवाज पढ़ रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है बीच-बीच में. Okay, just a हाँ। minute. Actually, everything is okay at my end. Still, I don't know what issue is Sir, happening. अभी okay है। नाउ इट इज ओके। अभी बराबर है। Okay. Is it clear now? यस। यस सर। यस सर। Okay, Yes, good, sir. good, good. Okay, I've set everything. Still, I don't recognize what the issue. Huh. Now see, there is a list of student on the screen. Only these 43 students are there. This list of 43 students who have submitted. This much student have only submitted the feedback. Yesterday I told you na ki you have to submit. Every student have to submit feedback till 5:30. After giving you the instructions, why you have not submitted the feedback? सब स्टूडेंट्स का फीडबैक आना एक्सपेक्टेड था. लिंक सब लोगों को मिला ना? यस ना? Everyone got the link. यस। Still you have not filled the feedback. Okay, last chance I am giving to everyone. After this lecture, okay, immediately at 11:40, you have to fill the feedback within 5 minutes. Okay, within 5 minutes आपको feedback fill करना है. Okay, जो भी remaining students है within 5 minutes feedback fill करना expected है. Otherwise फिर मुझे target करना पड़ेगा students को. Okay. ठीक है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ फिलहाल. Okay, so yesterday we have started a topic ICR and we have started first type of the example. Today we are starting another type of the example. Here are particular maximum five types of examples are there. All are simple. You have to just understand the example given in front of you, and accordingly you have to just draw the diagram, and after drawing the diagram you have to apply a sine rule or any geometry. You have to find out the angles and you have to find out the dimensions, which are the missing dimensions are there, वो आपको find करने होते हैं. और वो dimension मिलने के बाद obviously आपका example जो है वो easily solve हो जाता है. Okay, जैसे कल का second वाला जो example देखा था, तो some of the students have stuck for finding the value of angle. Okay, simple method होता है एंगल फाइंड आउट करने का, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा वो पर्टिकुलर मोमेंट में हमें वो क्लिक नहीं होता है. ओके, तो इट शुड नॉट बी हैपन कि हमें वो क्लिक होना एक्सपेक्टेड है, क्लिक होना चाहिए, तभी जाके अपना एग्जांपल सॉल्व होगा. और ये आउट ऑफ 6 मार्क्स वी विल बी एबल टू गेट द 6 मार्क्स. ओके, फॉर दिस एग्जांपल. ओके, अभी जो सेकंड वाला टाइप जो हम लर्न करने वाले हैं, the type 1 we have observed. Type 1 we have observed. तो what was happening over here? यहाँ पे मैंने वो type 1 शो किया था आपको. This is nothing but the type 1 of the example.
Okay, so you can call this type here is only one link and it is sliding. One link slide. ओके यहाँ पे क्या हो रहा है, वन लिंक इज गिवन विच इज स्लाइडिंग। ओके, जो सेकंड वाला टाइप है यहाँ पे क्या होगा, इन द सेकंड टाइप वन लिंक इज स्लाइडिंग एंड वन लिंक इज रोटेटिंग। प्लस वन लिंक रोटेट। ओके, कॉम्बिनेशन है, एक लिंक क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, एक लिंक जो है वो स्लाइड होगा। ओके, इसका एग्जांपल मैं भी आपको एक देता हूँ कि फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट ए ओवर हियर। ओके, वी आर डूइंग वन okay, it's a kind of one mechanism. Okay, about this point link AB is oscillating, link AB is oscillating. Okay, ये तो ऑलरेडी इसको मैंने बोल दिया, ये है लिंक B, सॉरी पॉइंट B, तो ये लिंक हो गया तुम्हारा B। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सिलेट हो रहा है। ओके, इन अनदर वे आई नीड टू से इट इज रोटेटिंग। ओके, ये लिंक क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है अबाउट पॉइंट ए। लिंक ए बी इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट ए। जो मैं छोटी छोटी चीजें बात कर रहा हूँ ना, ओके, व्हाट आर द थिंग्स आई एम सेइंग, यू हैव टू लिसन इट वेरी मच केयरफुली। लिंक ए बी इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट ए। ओके, मतलब लिंक ए बी के लिए आईसीआर क्या हो गया, लिंक ए बी के लिए आईसीआर क्या हो गया, पॉइंट ए। ओके, अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो, आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, दिस लिंक ए बी इज हिंज एट पॉइंट ए। ए के यहाँ पे क्या हुआ, हिंज हो रहा है, मतलब इजी टू रोटेट अबाउट पॉइंट ए। ओके, तो रोटेट तो हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे एक मैकेनिज्म क्रिएट किया। वी हैव अटैच वन स्लाइडर ओवर हियर। यहाँ पे एक स्लाइडर हम लोगों ने अटैच किया लाइक दिस। Okay, so what will happen? It will just slide on the ground. Okay, ग्राउंड के ऊपर जो है वो क्या होगा, स्लाइड होगा। Okay, so what will happen? Let me name it. This is a point C. Now you can easily observe that one link AB, it is rotating. Okay, one link is rotating and another link is sliding. Not a complete link is sliding, the end point of a link is sliding. Okay, end point nothing but the C is sliding. Okay, along the surface, along the horizontal surface, link C is point C of a link BC is sliding. Okay, तो ये कंडीशन समझ में आ गया। टाइप 2 क्या होता है। ओके, अभी इसके साथ डील कैसे करना है वो देख लेते हैं हम लोग। टाइप 2 क्या होगा, सब लोगों को क्लैरिटी आ गया। वन लिंक ए बी इज रोटेटिंग, अनदर लिंक बीसी का जो सी एंड जो है इट इज स्लाइडिंग। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया वन लिंक रोटेटिंग, वन लिंक स्लाइडिंग वाला। ओके, हाँ, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, वी आर जस्ट identifying how to find out the ICR for the given mechanism। अभी ये मैकेनिज्म के लिए ICR कैसे लोकेट करें, अभी देखो क्या करना है, इसके स्टेप्स देखो बेटा। Steps to locate ICR। हाँ,
तो सबसे पहला वाला स्टेप है इसमें कि व्हाट वी आर सपोज टू डू, यहाँ पे क्या करना है, जो स्लाइडिंग वाला लिंक है, स्लाइडिंग वाले लिंक का उसका जो स्लाइड करने वाला पॉइंट है, ओके, स्लाइडिंग पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, सी, ओके, तो point. उसका क्या करना है एग्जैक्टली, तो वी हैव टू जस्ट show the velocity of that along the surface, okay. स्लाइडिंग पॉइंट बोल देता हूं मैं यहाँ पे, स्लाइडिंग पॉइंट, ओके. एंड सेकंड, पुट perpendicular to the direction of velocity. Okay, ये जो show velocity of sliding point करने, सो जी कर दिया मैंने यहाँ पे. Along surface, okay, and the second step जो है put perpendicular to the direction of velocity, okay, and third step जो होगा, अभी ये steps हम लोग follow करने भी वाले हैं, okay, and what we are supposed to do, we have to just extend किसको करना है, extend the link AB, एक्सटेंड द लिंक AB, ओके. अभी देखो क्या होता है, अभी ये स्टेप्स है ना, यहाँ पे अप्लाई करेंगे. फर्स्ट स्टेप, ओके, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या बोला कि शो वेलोसिटी ऑफ अ स्लाइडिंग पॉइंट अलोंग द सरफेस, ओके. नाउ यू टेल मी ऑल द स्टूडेंट्स इफ there is having a connection between link AB and BC, okay, whenever the link AB will rotate in clockwise direction, so point C will move in a rightward direction or leftward direction. Rightward direction. Leftward direction. Rightward. Rightward. Rightward ना, okay, everyone is agree with this, तो ये rightward direction में वो move होगा, ओके, क्लियर है, ओके. तो अभी हमारा सेकंड स्टेप क्या बोलता है, पुट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ओके. चलो इसको परपेंडिकुलर, वेट, इसको हम लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं इसके लिए, सो इट इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी, क्लियर है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी. व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या करना है हमें, शो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसके डायरेक्ट, इसको वेलोसिटी का परपेंडिकुलर पुट करो यहाँ पे, ओके, ये परपेंडिकुलर पुट किया. और अभी क्या बोलता है, थर्ड स्टेप इज एक्सटेंड द लिंक AB. अभी लिंक AB को एक्चुअली इमेजिनरीली उसको एक्सटेंड करना है, मतलब एक्चुअली लिंक का जो लाइन होता है ना, लिंक का लाइन, उसको एक्सटेंड करना है. लिंक को AB, मतलब AB का लेंथ इंक्रीज नहीं होगा, इमेजिनरीली उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, उसका जो लाइन है, तो लाइन को इमेजिनरीली एक्सटेंड करना होता है. एंड हियर द इंटरसेक्शन इज नथिंग बट द ICR, ओके. यहाँ पे इंटरसेक्शन जो मिला, इट इज नथिंग बट द ICR. यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मुझे आपको शो करना है बेटा, दिस पॉइंट इज नथिंग बट द ICR, ओके. लेकिन ये जो ICR को मैं I से रिफ्लेक्ट कर देता हूँ, लेकिन दिस I इज फॉर लिंक BC ओनली है बेटा, ओके. ये I किसके लिए, BC के लिए है. अभी क्वेश्चन आता है, यहाँ पे तो सर दो लिंक है, यहाँ पे दो लिंक है, लिंक AB इज ऑल्सो देयर, लिंक BC इज ऑल्सो देयर, तो AB के लिए ICR कौन सा है, A. एग्जैक्टली, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि लिंक AB इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट A, ओके. दिस इज नथिंग बट द IAB, क्लियर, दिस इज नथिंग बट द IAB एंड दिस इज नथिंग बट द IBC.
ओके आई ए बी के अबाउट, ए बी तो ऐसे रोटेट हो रहा है, उसका डायरेक्शन हम लोगों ने शो कर दिया। नाउ चेक करो यहाँ पे वो कैसे रोटेट होगा रे बेटा, लिंक बी सी विल मूव, अभी यहाँ पे मुझे डायरेक्शन शो करना है, तो मैं एरो ऑप्शन 1 के यहाँ पे शो करूँ या ऑप्शन 2 के यहाँ पे शो करूँ? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मतलब सब लोग को समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? सब लोगों को मतलब जो लोग आंसर दे रहे हैं वो लोग को तो कम से कम समझ में आ रहा है। ओके हाँ, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सब लोगों को। इसको मैं अभी रब कर देता हूँ। तो ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी जो बनेगा इट विल बी ओमेगा BC। व्हाट BC। ओमेगा BC। ओके और ये इसका जो ओमेगा रहेगा, सॉरी ओमेगा, यस ओमेगा, इसका रहेगा ओमेगा रहेगा AB। गेट इट, ये क्लैरिटी हो गया यहाँ तक? ICR कैसे लोकेट करना है, उसका एंगुलर वेलोसिटी कैसे लोकेट करना है। ओके चलो ठीक है, पहले वाले एग्जाम में ना, एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या किया था, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन शो करना रह गया था हमारा। ओके डायरेक्शन का शो करना रह गया था, तो देखो ये क्या हो रहा है, ये जो है यहाँ पे इंक्लाइन सरफेस के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है एंड ये वर्टिकल सरफेस के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसका एंगुलर वेलोसिटी ऐसे होगा। ये क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ओके चलो ठीक है, अभी जो अपना टाइप 2 है उसके ऊपर आते हैं फिर से। हाँ हाँ चेक करेंगे यहाँ पे कि अभी ICR के जो कंसेप्ट है, ICR का कंसेप्ट जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होता है, इट इज नथिंग बट द लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ओके ये अगर फंडा इसके लिए हमें अप्लाई करना है दोनों लिंक के लिए, तो देखो दोनों लिंक के लिए अप्लाई करके देखते हैं हम। वी आर जस्ट अप्लाइंग दैट कंसेप्ट टू बोथ द लिंक्स। ओके तो लेट मी राइट डाउन फॉर अ लिंक AB फर्स्ट। लिंक AB के लिए ICR क्या है बेटा? A। पॉइंट A। A। ओके लिंक AB के लिए चलो ठीक है, अपने वाले मेथड से लिख देते ना। लिंक AB के लिए ICR is nothing but the point A. Okay, now you tell me guys, VA कितना रहेगा? चलो ठीक है, मैं बोल भी देता हूँ। AB। V क्या होता है? V is equal to R into ओमेगा। ओके सो VA के लिए रेडियस कितना आएगा? VA के लिए, यहाँ के लिए सेम पॉइंट से A पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? 0। ओके तो ये होगा 0 इंटू ओमेगा AB है ना। ये यहाँ पे क्या आएगा? ओमेगा AB आएगा ना। Yes sir। गेटिंग इट? हाँ तो फिर ये यहाँ पे क्या हो गया? ओमेगा AB तो व्हाटएवर जो भी वैल्यू रहेगा उसका, लेकिन 0 हो ये तो जाएगा। 0 है तो ये 0 हो जाएगा। ओके वी भी चेक करेंगे अभी। VB के लिए और VB के लिए बताओ रे बेटा, हाउ मच विल बी द वैल्यू ऑफ रेडियस? ICR इज A। ओके मतलब VB मतलब जो पॉइंट कौन सा है? B। ओके हाँ यस IB तो चलो ठीक है, IB तो मैंने लिख दिया था, लेकिन वो पॉइंट तो हमें पता है ना, दैट डिस्टेंस विल बी AB ओनली। करेक्ट है गाइस? IB इंटू ओमेगा AB। ये क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को? यस सर। ग्रेट। अभी लिंक कौन सा बचा है? अभी लिंक BC बचा है। ICR क्या है रे इसके लिए? ICR कौन सा पॉइंट है? I point। IBC। ओके IBC। ओके
तो एक्चुअली IBC आईबीसी नहीं लिखेंगे ना हम लोग तो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ पे तो ये इसके लिए आईसीआर ए पॉइंट है और इसके लिए आईसीआर आई पॉइंट है। ओके, तो अननेसेसरी इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो चलो ठीक है, आईबीसी हम लोगों ने बोला है ना, तो मैं यहाँ पे आईबीसी ले लेता हूँ। चलो ठीक है। हाँ, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा BC। क्लियर है? हाँ, तो अभी इसके 2 पॉइंट है ना, VB। इसके VB के लिए बताओ अभी क्या आएगा? बढ़िया। VB के लिए रेडियस कितना है? पॉइंट B के लिए रेडियस कितना है? IB I से लेकर B तक का डिस्टेंस, आ- मतलब ये IBC से लेकर कौन से पॉइंट तक का डिस्टेंस? B पॉइंट तक का डिस्टेंस। ओके, इनटू ये रेडियस हो गया, इनटू डिस्टेंस, इनटू ओमेगा कितना है? BC. ओमेगा BC। BC ओके, नाउ चेक फॉर VC। VC के लिए बताओ। IC IBC से लेकर IC into omega पॉइंट BC C तक का BC. डिस्टेंस इनटू ओमेगा BC। चलो ठीक है, ये सब लोगों को क्लियर हो गया? yes sir yes sir गुड गुड गुड। अभी ये क्लियर है तभी जाके हम लोग इसके एग्जांपल सॉल्व कर सकते सर उसी का बताओ ना हैं। वापस। कौन सा रे बेटा? लिंक बीसी का? हेलो, यू वांट टू नो अबाउट लिंक बीसी? देखो, लिंक बीसी के लिए आईसीआर क्या है? आईबीसी पॉइंट। ओके, आईबीसी इज नथिंग बट द आईसीआर फॉर द लिंक बीसी। ओके, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा? V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा BC। ओके, तो इसके लिए VB अगर हम लोग को पता करना है, VB के लिए रेडियस कितना होगा? IBC से लेकर B तक का डिस्टेंस, IBC B। ओके, इंटू ओमेगा BC। और VC क्या रहेगा? IBC से C तक का डिस्टेंस इंटू ओमेगा BC। ओके, चलो ठीक है। अभी इसके एग्जांपल्स जो देखते हैं, एग्जांपल्स अभी वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस यू वन इंपॉर्टेंट टर्म ओवर हियर। ओके, एक आपको रिलेशन बताना है कि एग्जांपल में क्या दिया जाता है ना बेटा। इन द एग्जांपल वी हैव गिवन आरपीएम। ओके, वी हैव बीन गिवन आरपीएम इन द एग्जांपल। वी हैव गिवन आरपीएम। ओके, ये आरपीएम मतलब क्या होता है? resolution per minute हाँ, यस यस यस, वी हैव बीन द आरपीएम। इसका मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, तो वी हैव टू सपोज टू कन्वर्ट इट इनटू अ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अगर हमें ये आरपीएम दिया है तो क्या, तो आरपीएम के लिए टर्म यूज कर सकते हैं, एन टर्म यूज करते हैं। ओके, so if you want to find out the angular velocity from the given rpm, so what we are supposed to do, you have to just let me just tell you relationship between two is equal to 2 pi n divided by 60. ओके, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ये you have just converted rpm RPS में हो जाएगा इंटू क्या? आरपीएस नहीं मिलेगा बेटा, ये रेडियन पर सेकंड मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा। ओके, ये कन्वर्जन का फॉर्मूला समझ लो। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने? आरपीएम टू एंगुलर वेलोसिटी कर लिया। ओके, रिवॉल्यूशन पर मिनट था, ये था रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, इसको कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, इसमें कन्वर्ट किया रेडियन पर सेकंड। Getting it? समझ में आ गया ना एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट कैसे करना है अगर हमें आरपीएम दिया है तो? Yes, 2 sir. पाई n by 60 ये फॉर्मूला है जो बातें कर रहे हैं हम लोग, वो इमीडिएटली यू हैव टू जस्ट फिट इनटू योर ब्रेन।
ओके तो जाके एग्जांपल स्टार्ट करते तो वी शुड बी एबल टू अप्लाई इट. ओके बैक पेज चेक करके फिर से बैक टू द पेज नहीं आना है. ओके 2 पाई n by 60 ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n डिवाइड बाय 60. ओके ये दिमाग में पकड़ के चलो. चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं. अभी एग्जांपल स्टार्ट कर लेते हैं. हाँ चलो ठीक है ये एग्जांपल अपने सामने है. चलो स्टेप्स क्या बताया था हम लोगों ने. स्टेप्स छोड़ो पहले एग्जांपल रीड कर लेते हैं. तो रॉड AB is there. Where is rod AB? Point A, okay, point B, okay. Rod AB has an angular velocity of a 2 radian per second. Okay, मतलब क्या ओमेगा AB ये कितना दिया है यहाँ पे. ओमेगा AB is given to us 2 radian per second. ओके देखो यहाँ पे आपका काम इजी हो गया. यहाँ पे डायरेक्टली रेडियन पर सेकंड दिया है ना. मतलब एंगुलर वेलोसिटी दिया है डायरेक्टली कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं. काउंटर क्लॉकवाइज H1 ओके उसका डायरेक्शन भी दिया है काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है. एंड सी ऑफ द रॉड BC इज फ्री टू मूव ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस. ओके ये BC का जो एंड C है वो क्या हो रहा है फ्री टू मूव ऑन द सरफेस. ओके व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड BC. ये BC का एंगुलर वेलोसिटी हमें पता करना है. ओके एंड वेलोसिटी ऑफ एंड C ये C का वेलोसिटी कितना रहेगा VC कितना रहेगा वो पता करना है. एंड ओमेगा BC कितना रहेगा वो हमें पता करना है. क्वेश्चन सब लोगों को समझ में आ गया. कैन वी स्टार्ट टू सॉल्व इट. Yes, sir. ओके ओके माय वॉइस इज क्लियर राइट. Yes, sir. Yes, sir. गुड. चलो अभी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम लोग. स्टेप्स क्या था रे बेटा. व्हाट वर द स्टेप्स वी हैव लर्न. फर्स्ट So स्टेप velocity बताओ of sliding चलो. point along Velocity of point. sliding points along surface. Sliding point along surface. ओके गुड. ओके नाउ यू टेल मी गाइस कि स्लाइडिंग पॉइंट कौन सा है यहाँ पे. C. व्हिच वन इज द स्लाइडिंग C, पॉइंट आइडेंटिफाई करो. C. C ग्रेट एक्सीलेंट. ओके ये C कहाँ पे मूव होगा. राइटवर्ड जाएगा लेफ्टवर्ड जाएगा. Leftward. व्हेन रॉड AB is लेफ्टवर्ड. Rightward. Rightward जाएगा. Right. AB कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना. तो ये पॉइंट C जाएगा तुम्हारा ये डायरेक्शन में. करेक्ट है. Yes, sir. ओके तो ये होगा तुम्हारा VC. करेक्ट है. वेलोसिटी अलोंग द Yes. सरफेस सेट कर लिया. सेकंड स्टेप क्या है अभी. Put perpendicular to the Mark direction. perpendicular. To the direction of velocity. वेलोसिटी का परपेंडिकुलर. स्लाइडिंग है तो परपेंडिकुलर पुट करना है. इसको परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया. ओके व्हाट नेक्स्ट. Extend the link. Next Extend the Extend the link AB. ओके लिंक AB मतलब क्या. रोटेटिंग जो लिंक हो रहा है जो लिंक रोटेट हो रहा है उसको एक्सटेंड करना है. अभी उसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा तो ICR मिलेगा इंटरसेक्शन मिलेगा क्या रे पॉइंट. No, sir. No, sir. क्या करना पड़ेगा ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा. गेटिंग इट ना. तो हियर वी हैव गॉट द पॉइंट I. क्लियर है. Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन गॉट द क्लियर आइडिया अबाउट दैट. ICR कैसे लोकेट किया I कैसे लोकेट किया हम लोगों ने. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके अभी मैं डायग्राम फिर से नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम फॉर दैट. ओके तो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू नाउ. Sir, चलो, point ठीक है. A fix आएगा. Which Point A fix है. point A is hinge. ऑलरेडी हम लोगों ने वो डिस्कस किया था ना. point A is hinge. जो भी टाइप 2 लर्न कर रहे थे हम लोग. point A is hinge. Okay, it is rotating about point A. Sorry, the link AB is rotating about point A, and that's why the point A is hinge. Okay, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं अभी हम. चलो पहले हम लोग जो इक्वेशंस लर्न किया था ना. इक्वेशंस इन द सेंस जो कंडीशन लर्न किया था हम लोगों ने.
वन बाय वन लिंक के लिए हम लोग वो इक्वेशन राइट डाउन कर लेते हैं। लिंक कौन सा लिंक के लिए लिखेंगे? चलो ठीक है, लिंक ए बी के लिए लिखते हैं। लिंक ए बी के लिए आईसीआर क्या है? ए A. पॉइंट ए। ओके, तो इसका भी चलो ठीक है, वी ए क्या होगा? पहले उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हम लोग को। वी इज इक्वल टू आर इनटू ओमेगा ए बी, राइट? Yes. ओके, चलो वी ए बताओ अभी। वी ए 0 आएगा 0 Okay. आएगा सर। Yes, sir. 0. एंड वी बी विल बी ए बी। ऑलरेडी हम तो लोगों ने देखा है। 0.3 इंटू ओमेगा है। यस यस 0.3 व्हाटएवर जो भी आएगा वो देख लेंगे बाद में। नाउ लिंक बीसी के लिए देखेंगे। इसके लिए आईसीआर क्या है? I. फॉर लिंक बीसी आईसीआर क्या है बेटा? Point I. पॉइंट आई। ओके, चलो अभी इमीडिएटली उसका डायरेक्शन भी शो कर देते हैं। कैसे रोटेट होगा वो? अभी सी पॉइंट यहाँ पे जा रहा है ना, तो बी पॉइंट ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ये ऐसे घूमेगा। करेक्ट है? Yes, sir. ओमेगा बीसी। Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी वी ए लिख नॉट वी ए, वी बी लिख देता हूँ मैं। वी बी विल बी लाइक आई से लेकर बी तक का डिस्टेंस, करेक्ट है? इंटू ओमेगा, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे? v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा बी सी। एंड वी सी इज इक्वल टू आई सी इंटू ओमेगा बी सी। ये इक्वेशन में किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. गुड गुड गुड, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। थोड़ा अभी ऑब्वियसली साइन रूल अप्लाई करना है। साइन रूल अप्लाई करके जो डिस्टेंसेस है हमें आई बी का डिस्टेंस पता करना है, आईसी का डिस्टेंस पता करना है, तभी जाके हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। इजंट इट? यस और नो? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो उसके लिए हमें Yes, पहले sir. तीनों एंगल भी पता करना है। जो साइन रूल अप्लाई करने के लिए तीनों एंगल भी पता करना है। चलो ठीक है, पहले एंगल पता कर लेते हैं हम लोग। ये अगर 40 डिग्री है बेटा, दिस एंगल इज 40 डिग्री, तो रिमेनिंग एंगल कितना रहेगा? 50. 50 degree. 50 डिग्री। गुड। अभी ये 40 डिग्री है, दिस वन इज 40 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल कितना रहेगा? 40. 40 degree. 40 डिग्री रहेगा। ओके, बाय द वे ए बी तो 90 डिग्री है ना, तो 15 ये 90 है, तो ऑब्वियसली 40 डिग्री आएगा। 40 डिग्री। ओके, गेटिंग इट? अभी तीनों एंगल तो मिल गए हमें, एंड वी नो द वन साइड तो पता है, इट्स कितना, कौन सा साइड पता है हमें? बीसी साइड पता है। बीसी इज नथिंग बट द BC. 0.5 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जस्ट सेकंड। चलो ठीक है, डायरेक्टली साइन रूल अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाइंग साइन रूल, फॉर ट्रायंगल IBC, right? Yes, sir. Okay. चलो, which side is known to us? We know the side BC. BC कितना दिया है? 0.5 मीटर। 0.5. उसके लिए एंगल कितना है? You have to consider angle 40 डिग्री, right? उसके सामने वाला जो एंगल है, okay, and we want to know IB, IA कैसे पता करेंगे? IA के लिए हमें पता होना चाहिए IA, वेट IB चाहिए, राइट? हमें IB एंड IC चाहिए। ओके, IB के लिए कितना एंगल लेना है? IB के लिए sin 50, राइट?
Yes, sir. ओके एंड रिमेनिंग आईसी। आईसी के लिए कितना एंगल लेना है? आईसी 90. के लिए एंगल है यहाँ पे 90. 90. ओके, तो हियर वी कैन गेट द वैल्यूज ऑफ आईबी। आईबी का वैल्यू मिलेगा मीटर में एंड आईसी का वैल्यू मिलेगा। ओके, ये दो वैल्यू मिलेंगे अभी हम यहाँ पे हमें। तो आईबी का वैल्यू हमें मिल गया। ओके, तो इन द एग्जांपल यू हैव बीन गिवन वो ओमेगा एबी का वेलोसिटी दिया, ओमेगा एबी का वेलोसिटी हमें दिया है, इजंट इट? अभी देखो यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरीके से ध्यान दो। हमें गिवन वेलोसिटी कौन सा है? ओमेगा एबी का। ओके, नाउ दैट टर्म इज अवेलेबल ओवर हियर। वो टर्म कहाँ पे अवेलेबल है? इट इज अवेलेबल ओवर हियर। गेटिंग इट? अभी देखो क्या करना है हमें, ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे। VB इज इक्वल टू AB का लेंथ कितना है? 0.3 0.3. 0.3 इंटू ओमेगा AB कितना है? 2 रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर ओके, तो VB कितना मिला? 0.6 0.6 मीटर पर क्या? सेकंड। मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड, एग्जैक्टली। ओके, ये मिला हमें वैल्यू VB का। ओके, तो VB का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे VB इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस VB क्या है बेटा? VB इज नथिंग बट द IB। ओके, IB का वैल्यू यहाँ से हमें तो पता चल जाएगा। ओके, एंड यहाँ से हमें ऑलरेडी VB का वैल्यू मिला है। ओके, IB इंटू ओमेगा BC, VB का वैल्यू ऑलरेडी वी हैव गॉट इट 0.6 इज इक्वल टू IB का वैल्यू यहाँ से पता करके यहाँ पे लिख देंगे। ओके, इनटू ओमेगा BC। अभी यहाँ पे अननोन क्या मिलेगा हम लोग को? अननोन विल बी ओमेगा BC ओनली। तो ये ओमेगा BC वी गॉट द वैल्यू ऑफ ओमेगा BC। ऑब्वियसली इसका यूनिट रहेगा रेडियन पर सेकंड। ओके, एक बार अगर हमें ओमेगा BC मिल गया तो वी हैव टू पुट इट इन दिस इक्वेशन। BC इज इक्वल टू IC का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम लोग, IC इंटू ओमेगा BC। तो ये IC का वैल्यू यहाँ से जो मिल रहा है हमें पुट करेंगे यहाँ पे, इंटू ओमेगा मीटर BC पर का वैल्यू सेकंड। यहाँ से मिला है हमें। ओके, तो ये वी विल गेट द वैल्यू ऑफ VC इन मीटर पर सेकंड। गेटिंग इट? स्टेप्स क्लियर हो गया सब लोगों को? यस सर। Yes, sir. सॉल्व कर दो इसको। IB का वैल्यू 0.595. ग्रेट, यस सर। सब लोग समझ के लो है इसको, नो नीड टू रन बिहाइंड दैट। IB का वैल्यू कितना मिला? 0.595. 0.59 फाइनल मिलता है, राइट? यस अभी मीटर में है ना, तो थोड़ा एक्यूरेसी हमें बढ़ाना है। अगर मिलीमीटर में होता तो एक्यूरेसी थोड़ा कम लेते चलता था, मीटर में है तो एक्यूरेसी बढ़ाना है, तो आंसर हमारा ज्यादा करेक्ट आएगा। IC का वैल्यू मिल रहा है 0.779 मिलता है। ओके, अभी ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे पुट करेंगे IB का वैल्यू जो मिला 0.5959 इंटू, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को ओमेगा BC का वैल्यू मिलेगा कितना मिला रे? ओमेगा BC का वैल्यू 1.06 रेडियन पर सेकंड. 1.006 1.01 मिलता है। यस, 1.01 रेडियन पर सेकंड ये वैल्यू मिला। ये पुट करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे 1.01, और ये IC का वैल्यू ऊपर से निकाला है हम लोगों ने 0.779। ओके, तो वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ VC इज इक्वल टू कितना मिला रे बेटा? 0.7856। 0.779 ओके, ठीक है, 0.786 वगैरह इसके अराउंड वैल्यू मिल जाएगा आपको।
गॉट इट? सब लोगों को स्टेप्स क्लियर हो गया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. ओके, अभी Yes, sir. नेक्स्ट वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग. हेलो हेलो सर. हाँ, यस बेटा. सर प्रीवियस प्रॉब्लम में डायरेक्शन ऑफ वीबी क्या होगा? वेलोसिटी एट बी. प्रीवियस प्रॉब्लम मतलब कौन सा? ये वाला, इसकी बात हाँ, कर रहा है? इसमें ही. अगर आप डायग्राम में बनाओगे तो आप वेलोसिटी एट बी कौन से डायरेक्शन में दोगे? अपवर्ड जाएगा ना सर? अभी देखो बी का डायरेक्शन जो अगर यहाँ पे बोलेंगे ना हम लोग, तो बी विल हैविंग अ डायरेक्शन लाइक दिस, है ना? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना, तो ये ऐसे हाँ. जाएगा तुम्हारा भी. हाँ, ठीक है सर. ओके, यस, थैंक यू. अच्छा हो गया आपने क्वेश्चन किया, सब लोगों को पता भी चल गया दैट वीबी इज हैविंग दिस डायरेक्शन. ओके, मतलब लिंक के अलोंग ये उसका मोशन होगा, लिंक के अलोंग फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द आईसीआर ना, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. ओके, तो फॉर दिस मोमेंट इट इज हैविंग अ डायरेक्शन दिस वीबी. हर एक पोजीशन के लिए उसका डायरेक्शन चेंज होते जाएगा. क्लियर है यहाँ पे? थैंक यू सर. ओके, चलो ठीक है. हाँ, और डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको हिंट क्या देना है इसके लिए? तो आपको ये डबल, जो यहाँ पर डबल लाइन डायग्राम दिया है ना, लिंक ए बी कैसे डबल लाइन से शो किया, तो आप सिंगल लाइन से शो करेंगे तो भी चलेगा. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था ना, सिंगल लाइन से शो किया था, वैसे करेंगे तो भी चलेगा. ओके, वैसे ही करना है बेसिकली. तो भी ये नेक्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं. तो चाहिए तो इसके लिए मैं लाइन डायग्राम शो करके बताता हूँ आपको. व्हाट दे हैव आस्क्ड इन दिस डायग्राम, इसका मैं स्टेप्स बोलूंगा और पूरा एग्जांपल फिर आप सॉल्व करेंगे. हाँ, फॉर अ क्रैंक ऑफ अ कॉन्सेंट्रिक मैकेनिज्म. ये कॉन्सेंट्रिक मैकेनिज्म क्या है वगैरह, वो मतलब हमें पता तो है नहीं. ओके, लेकिन उसके ज्यादा डिटेल में जाना भी नहीं है फिलहाल तो. ओके, लेकिन आपका क्यूरियोसिटी है तो मैं आपको एक बोल देता कि जो अपना इंजन होता है ना बेटा, टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का, है ना, तो डिफेंड किया देयर में बी मल्टीपल सिलेंडर इंजिन्स. ओके, जैसे कि अपना ये इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फोर व्हीलर ना, तो देयर आर मल्टीपल सिलेंडर्स. ओके, एंड टू व्हीलर जो होते हैं अपने छोटे छोटे, मतलब जो 125 सीसी के वगैरह हो गए, तो दे आर हैविंग ओनली सिंगल सिलेंडर इंजन. मतलब एक ही सिलेंडर होता है, उसके अंदर वो पिस्टन जो है, पिस्टन आगे पीछे मूव होते जाता है. ओके, चलो ठीक है, लेट मी जस्ट ट्राई टू शो इट विद द हेल्प ऑफ वीडियो. थोड़ा सा एक डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन आपका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. सर कार में 4 सिलेंडर होते हैं. हाँ, कार में तो मल्टी सिलेंडर्स होते हैं. देयर में भी 4 सिलेंडर्स, 8 सिलेंडर ऑल्सो. जो ट्रक का इंजन होता है उसमें 8 सिलेंडर होता है ना. इवन आप लोग इसका इंजन देखोगे कौन से गाड़ी का, जो ज्यादा सीसी वाले होते हैं ना, टू व्हीलर्स, उसमें भी 2 सिलेंडर्स होता है. 2 सिलेंडर वाला इंजन होता है उसमें. यस ओके, सर. हाँ, तो वो तो एक्चुअली अलग डिस्कशन हो जाएगा. बस सिंपल मैं आपको डायग्राम शो कर देता हूँ इसका. जस्ट अ सेकंड.
Can you see the screen? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. अभी एक डीजल इंजन का एक वर्किंग शो कर देता हूँ. दिस इज नथिंग बट द सिलेंडर. बॉटम में जो क्रैंक केस दिख रहा है इसका, वहां पे लुब्रिकेशन के लिए ऑयल एग्जिस्ट होता है. Different parts. After compressing air, fuel will be injected and explosion will occur over there. वो एक्सप्लोजन जो होता है वही आपके गाड़ी को, आपके व्हीकल को पावर देता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पावर स्ट्रोक. जो स्ट्रोक में पावर क्रिएट होता है, ये स्ट्रोक में पावर क्रिएट होता है. इट इज कॉल्ड एज अ पावर स्ट्रोक ऑल्सो. सो आफ्टर बर्निंग, ट्रेन के इंजन में यूज होता है क्या? ट्रेन में sorry? यूज होता है क्या? डीजल इंजन यूज होता है क्या? क्या क्या? ट्रेन में डीजल इंजन में यूज होता है क्या? देखो अभी क्या होता है कि कोई कोई ट्रेन्स को है ना, जैसे कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है वहां पे डीजल इंजन ही होता है ना. जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है तो वहां पे डीजल इंजन ही यूज किया जाता है ट्रेन्स को रन करने के लिए भी. ओके, एक शॉर्ट में देख लो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग तो दिस इज नथिंग बट द पिस्टन. ये क्या हो रहा है? स्लाइड हो रहा है. ओके, पिस्टन इज स्लाइडिंग एंड ये लिंक जो है यहाँ पे क्रैंक क्या है, वो क्रैंक रोटेट हो रहा है. क्रैंक इज रोटेटिंग एंड दिस पिस्टन इज स्लाइडिंग. मतलब जो हम लोग जो लिंक ए बी देखा था, हाँ, तो लिंक ए बी क्या हो रहा था? लिंक ए बी रोटेट हो रहा था. मतलब यू कैन से कि ये यहाँ पे लिंक ए बी है तुम्हारा. ओके, एंड जो स्लाइड होने वाला जो लिंक बी सी का जो पॉइंट सी है, इट इज कनेक्टेड विद द पिस्टन. गेटिंग इट? चल ठीक है, फिलहाल के लिए इतना इनफ है. अभी हम लोग देख लेते हैं अपना प्रॉब्लम. Okay, can you see the example in front of you now? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है. इसका मैं फटक से आपको आईसीआर लोकेट कर देता हूँ. बाकी ड्रॉ करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है. बाकी ये वेरी मच सिंपल एग्जांपल है इसमें. तो ये हो गया आपका लाइन डायग्राम. पहले मैं इसका बना देता हूँ. जैसे कि यहाँ पे पॉइंट पी, और ये हो गया आपका पॉइंट क्यू, ये हो गया पॉइंट ओ. Angle given to you 60 degree. Okay, and this is nothing but the, you can say, चलो ठीक है, इसे रेफरेंस की लाइन ड्रॉ कर दी हम लोगों ने. इसके अबाउट क्या हो रहा है? वो रोटेट हो रहा है. फाइन, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, तो मैंने इसको ऐसे हिंज का साइन दे दिया. ओके, एंड व्हाट नेक्स्ट? ये रोटेट कैसे हो रहा है? रोटेट कैसे हो रहा है चेक करेंगे. देखो, तो पहला जो यहाँ तक जो क्या एक्सप्लेन किया टिल दिस पॉइंट, दे हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड कि ICR is determine the ICR of connecting rod at a position shown. Position shown जो है स्क्रीन में in front of your in the question, okay, in the figure. तो for that you have to apply ICR concept. Okay, and क्या करना होता है? ICR उसका लोकेट करना होता है. एंड द क्रैंक OQ रोटेट्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्रैंक का मतलब क्या है?
क्रैंक का मतलब नथिंग बट द पॉइंट, नथिंग बट द लाइन ओ क्यू। कैसे घूम रहा है वो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया उसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करेक्ट है? ओके, तो उसका यहाँ पे आरपीएम दिया है बेटा, उसका क्या दिया? आरपीएम दिया। तो हियर वी हैव टू कन्वर्ट इट। ओके, तो दिस इज नथिंग बट द ओमेगा ओ क्यू। ओके, ओमेगा ओ क्यू कैसे मिलेगा हम लोग को? 2 इंटू पाई इंटू एन। एन कितना है इसका? 310. 310. 310 डिवाइड बाय 60। ओमेगा ओ क्यू मिल गया हमें। यस, ओके, ये Yes, sir. क्या रहेगा? ऑब्वियसली रहेगा हमारा रेडियन पर सेकंड। 32.46. ओके, जो भी वैल्यू आपको मिलेगा। ओके, व्हाट नेक्स्ट? अभी क्या करना है हमें? इसका आईसीआर लोकेट करना है। ये डिस्टेंस कितना दिया? डिस्टेंस में मैं इसके ऊपर नोट डाउन कर लेता हूँ। ये है उसका 50 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस। ओके, नाउ यू टेल मी गाइस, इफ OQ is rotating in a clockwise direction, तो obviously point P will move in a rightward direction. Clear है? तो यहाँ Yes, पे sir. होगा उसका VP. ओके, और ये जैसे Q का भी हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ P एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। तो Q का तो कुछ ड्रॉ निकालने के लिए बोला है नहीं, तो Q को भी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं हम लोग ऐसे ही। हाँ, चल आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप्स क्या होते हैं हमारे? व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर लोकेटिंग द आईसीआर? फास्ट फास्ट जल्दी बताओ। Perpendicular to the P. यस, परपेंडिकुलर क्या करना है? जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर पुट करना होता है। यहाँ पे मुझे थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा डायग्राम को। हाँ, देखो अभी क्या करना है? व्हाट आई सपोज टू डू? आई हैव टू पुट अ परपेंडिकुलर। इसको मैं परपेंडिकुलर पुट कर देता हूँ वैसे। ओके, एंड जो रोटेट हो रहा है लिंक, उसको एक्सटेंड करना है। टू जस्ट एक्सटेंड द लिंक, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ वैसे। एंड हियर आई एम गेटिंग इंटरसेक्शन पॉइंट व्हिच इज नथिंग बट द आई, मतलब आईसीआर। ओके, नाउ यू टेल मी गाइस, इसका मैं डायरेक्शन क्या शो करूँ? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2? Option Option 1. 1. ग्रेट। ओके, ये ऑब्वियसली इधर राइटवर्ड की तरफ जा रहा है, पी भी राइटवर्ड की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो फॉर दिस इंस्टेंट आई हैव टू पुट द डायरेक्शन लाइक दिस। तो ये हो गया अपना ओमेगा पी क्यू। ओके, जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड एट द इंस्टेंट। ओके, ये पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है। नाउ चेक इट, साइन रूल अप्लाई करना है हमें। If you want to apply the sine rule over here for getting the distance of IP, distance पता करना, IQ distance पता करना है, तो कैसे पता करेंगे हम लोग? How we will get that distance? तो obviously we should know the angles. Okay, now we check it guys. तो एंगल ये दिया है हमें 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना रहेगा? 30 डिग्री, लेकिन ये तो 90 डिग्री नहीं है ना। दिस इज नॉट अ 90 डिग्री एंगल। हाउ यू विल गेट इट देन? देखो यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, थोड़ा सा अपना 2-3 मिनट टाइम एक्सटेंड हो जाएगा वो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन एक बार वो एंगल पता चल गया तो यू कैन सॉल्व एट योर ओन। नाउ चेक इट गाइस। ओके, तो हमें क्या करना है? वी हैव गिवन कौन से एंगल दिए यहाँ पे पता करेंगे। यू टेल मी हाउ मच इज दिस एंगल? अभी ये 60 डिग्री है ना, तो ये एंगल ऑब्वियसली कितना बनेगा यहाँ पे? 30 डिग्री बनेगा। ये तो परपेंडिकुलर है, वी आर श्योर अबाउट दिस बट नॉट श्योर अबाउट दिस, नॉट श्योर अबाउट दिस एंगल, है ना। तो ये एंगल तो हमें पता 90 डिग्री है, तो ये तो पक्का 30 डिग्री बनेगा। ओके, एंड हियर वी नो वन साइड, ये 50 डिग्री 50 सेंटीमीटर जो साइज है, ये तो हमें पता है, isn't it? Okay, now
चेक करेंगे हम लोग ट्रायंगल पीओक्यू। ओके, ट्रायंगल पीओक्यू चेक करेंगे, ट्रायंगल पीओक्यू। इसमें कितना एंगल पता है हमें? वी नो वन एंगल एंड टू साइड, वन एंगल एंड टू साइड्स आर नोन टू अस। देखो ये कितना दिया हमें, ये जो दिया 10 सेंटीमीटर दिया है। ओके, तो इसका ही हमें बेनिफिट लेना है। ओके, कैसे लेंगे बेनिफिट इसका अभी चेक करो। फॉर साइड 50 सेंटीमीटर, फॉर साइड 50 सेंटीमीटर, एंगल कितना है यहाँ पे? साइन 60 डिग्री, करेक्ट है? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. ओके, एंड फॉर साइड 10 सेंटीमीटर, साइन कितना एंगल है? वही तो नहीं पता है ना, वही तो फाइंड आउट करना थीटा ले लो। है। साइन अल्फा लिख देता हूं मैं। ओके, तो यहाँ पे हमें अल्फा एंगल मिलेगा, इजंट इट गाइस? अल्फा एंगल यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर सकेंगे। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अभी अगर एक बार हमें अल्फा एंगल मिल गया तो ये ए वाला एंगल हम लोग मिल सकता है ना हमें, 90 माइनस अल्फा होगा कि नहीं? यस और नो? क्लियर? ये वाला एंगल बनेगा 90 माइनस अल्फा। ओके, और ये 90 माइनस अल्फा मिला, ये 38 डिग्री मिला, तो यू कैन गेट दिस एंगल आल्सो। यस और नो? चलो ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार शॉर्ट में बताता हूं। हम लोगों ने पहले क्या किया, अप्लाइंग साइन रूल फॉर ट्रायंगल पीओक्यू। ओके, तो यहाँ पे हमें अल्फा मिला, लेकिन हमें ये अल्फा एंगल किस लिए चाहिए? फॉर अप्लाइंग साइन रूल फॉर ट्रायंगल IPQ। अभी IPQ के लिए हमें तीनों एंगल मिल गए। ओके, ये हुआ 90 माइनस अल्फा, जो भी अल्फा यहाँ से आएगा वो माइनस कर देंगे तो एंगल मिलेगा, ये 30 डिग्री मिलेगा। ओके, ये रिमेनिंग एंगल जो है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तीनों एंगल मिलने के बाद वी कैन इजीली गेट, अभी ये 50 के लिए 50, अभी यहाँ पे हमें क्या एक्सपेक्ट करना है एक्चुअली? 50 सेंटीमीटर, मतलब कितना मीटर हो गया रे? 0.5 मीटर हो गया। ओके, बिकॉज अभी जब भी हम लोग जो यूनिट फॉलो कर रहे हैं ना वो मीटर पर सेकंड है, तो हमें उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मतलब ऑल द डायमेंशन शुड बी इन मीटर। तो ये हो गया 0.5 मीटर एंड उसके लिए एंगल है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ओके, तो ऑब्वियसली हमें बाकी के साइड के लिए भी एंगल मिल सकता है। एंगल पता करने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं आईपी के लिए एंगल जो मिलेगा हमें इज इक्वल टू आईक्यू के लिए एंगल मिलेगा। ओके, एंड हियर यू विल गेट अ डायमेंशंस आईपी एंड आईक्यू। ओके, 3 डायमेंशन मिलेंगे आप लोगों को। तो इसके लिए भी आपको यू हैव टू जस्ट अप्लाई द सेम थिंग, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन दिस। ओके, 2 इक्वेशन लिखने हैं उसके लिए एंड आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कर पाएंगे अभी इसको? ये तीनों साइड तो मिल गया आप लोगों को, ये डायमेंशन तो मिल गया ना, आईक्यू मिला, आईपी मिला। ओके, अभी बस वो सिंपल वाला कंसेप्ट यूज करके हमें उसको सॉल्व करना है। सर आंसर बता दो ना। आर यू एबल टू सॉल्व इट? हाँ, आंसर चाहिए आपको? यस सर। आप पहले इसको सॉल्व कर लो बेटा, आप सॉल्व कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में आपको आंसर शेयर कर देता हूँ। चलो ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ, यू जस्ट स्टॉप इट। ओके, आप यू जस्ट लीव द मीट एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अभी मैं वो लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, आपका लिंक ऑलरेडी शेयर किया है फीडबैक का। जो लोगों ने फीडबैक नहीं शेयर किया, फीडबैक नहीं फील किया, वो लोग फीडबैक फील कर दो एंड एवरीवन हैव टू लीव द मीट। तो मैं क्या करूंगा, अभी ये लेक्चर तो रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं प्रॉब्लम को यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व कर देता हूँ आगे। ओके, आई विल राइट द आंसर्स आल्सो एंड विल बी शेयर इन द क्लासरूम। ओके, तो आपको इसके आंसर्स भी पता चल जाएंगे। क्लियर टू ऑल? यस सर।
यस Okay, sir. Yes, sir. स्टेप्स भी कोई कोई स्टूडेंट Yes, को sir. इसके Thank you, steps sir. नहीं clear हुआ है, तो स्टेप्स भी आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू लीव द मीट एंड ज्वाइन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड विद इन 4 मिनट. उसके बगैर नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन होना नहीं है. मुझे पहले फीडबैक सबमिट करके चाहिए. क्लियर? ओके, नाउ यू ऑल कैन लीव. Thank you, sir. See you in the practical. Today we are having a practical at 2:40. It's of a basic workshop practice. See you on that time. Bye. Thank you, sir. Yeah, welcome. अश्विन, विराज मीटिंग से बाहर नहीं जाना है. अलर्ट रहा करो थोड़ा. प्रज्ञा पावडे, यू आर स्टिल इन अ मीटिंग. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस एग्जांपल. ओके, तो थोड़ा फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. इन दिस एग्जांपल एक्चुअली जब भी हमें आईसीआर के कंसेप्ट इंप्लीमेंट करने होते हैं. ओके, चलो ठीक है, वो इक्वेशन पहले हम लोग लिख देते हैं. फॉर लिंक OQ, फॉर लिंक OQ, ICR क्या है उसके लिए? ICR is nothing but the point O. Okay, so for this VV is equal to radius into omega OQ. Okay, OQ ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा है. यू फाइंड आउट दिस वैल्यू 32.46 रेडियन पर सेकंड. ओके, तो ये ऑलरेडी हमें ये वैल्यू पता है. तो अगर हमें ये अप्लाई करना है फॉर VO के लिए, अगर हमें अप्लाई करना है तो VO तो ऑटोमेटिकली द सेम पॉइंट इज देयर, VO हो जाएगा 0 एंड VQ विल बी OQ into omega OQ. So here VQ का वैल्यू हमें मिल सकता है. VQ will be guys, OQ is nothing but the 10 centimeter. Okay, if you are getting it in a मीटर तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर. ओके, 50 का भी मैं इधर लिख देता हूँ 0.5 मीटर. ओके, तो ये 0.1 इंटू ओमेगा OQ हमें मिला है वैल्यू 32.46 रेडियन. ओके, नो नीड टू राइट डाउन रेडियन. ओके, तो ये इसका जो वैल्यू मिलता है हमें, the value of VQ we will get it over here 3.246 meter per second. ओके, नाउ ये तो क्लियर हो गया. अभी फॉर लिंक PQ के लिए ICR क्या है? फॉर PQ ICR is point I, so V will be is equal to R into omega PQ. ओके, तो VP, अगर मुझे VP लिखना है तो VP will be is equal to IP. ओके, सो हियर वी शुड नो दिस डिस्टेंस. ये IP डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए. ओके, सो इनटू ओमेगा PQ and VQ is equal to IQ into omega
IPQ into, okay, so अभी VQ already we have found out. VQ we have found out 3.246. Okay, so here 3.246 into sorry, ये लेकिन ये IQ का वैल्यू तो हमें पता नहीं है. IQ का वैल्यू हमें लगेगा यहाँ पे, और VP फाइंड आउट करना है, VP फाइंड आउट करना है, तो IP का वैल्यू भी लगेगा. तो ये वैल्यू कहाँ से पता चलेंगे हम लोगों को? विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल IPQ. अगर IPQ हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ साइन रूल अप्लाई करते हैं ट्रायंगल IPQ के लिए, तो हमें वैल्यू मिलेगा IP का और IQ का. ये IP का वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगा और ये IQ का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा. ओके, तो साइन रूल अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली व्हाट वी सपोज टू नो, वी शुड सपोज टू नो द एंगल्स. ऑल एंगल्स हमें पता होने चाहिए. तो ये यहाँ पे चेक करेंगे तो ये 30 डिग्री तो एंगल हमें पता है. ओके, तो एंगल PIQ इज नोन टू अस, लेकिन एंगल IPQ कितना रहेगा, एंगल IQP कितना रहेगा, ये तो हमें पता है नहीं. ओके, तो ये एंगल कैसे पता करें हम लोग? तो फॉर गेटिंग दैट एंगल्स, तो यहाँ पे देखो क्या किया हम लोगों ने. उसके लिए सबसे पहले तो हमें दिस एंगल अल्फा, वी शुड आइडेंटिफाई दिस एंगल अल्फा. तो एंगल हमने कैसे पता किया? वी हैव जस्ट अप्लाइड अ साइन रूल फॉर ट्रायंगल POQ. ओके, ये साइन रूल अप्लाई किया ट्रायंगल POQ के लिए, जिसमें क्या बोला हमें? वी हैव बीन aware about the sides. Okay, two sides are known to us. Okay, and only one angle is known to us. So with the help of that we can get the another unknown angle. जैसे कि यहाँ पे for a 50 sin 60 is there, for 50 sin 60 is there, for 10 sin alpha is there. Okay, no need to write down here 0.5 0.1. Okay, it's fine. अगर वैसे भी लिखते तो भी क्या होगा? सेम इफेक्ट विल बी देयर. तो फाइनली यहाँ पे हमें ये अल्फा का वैल्यू मिलेगा. ओके, तो ये अल्फा का वैल्यू यहाँ पे हमें मिल सकता है. इट्स 9.97 डिग्री. ओके, 9.97 डिग्री मिला हमें यहाँ पे. ओके, तो नाउ यू टेल मी गाइस, तो यहाँ पे एंगल कितना मिलेगा? 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस 9.97, तो ये एंगल मिलता है हमें 80.03 डिग्री. ओके, ये एंगल हमें कितना मिला? 80.03 डिग्री. ओके, तो ऑब्वियसली हाउ मच विल बी दिस एंगल? ओके, 80.03 प्लस 30. ओके, इसका एडिशन माइनस करना 90 में से, सॉरी 180 में से माइनस करना. तो 180 में से इसका एडिशन माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल जो है हमें, वो एंगल यहाँ पे मिलेगा हम लोग को. दिस एंगल विल बी 69.97 डिग्री. ओके, ये तीनों एंगल तो मिल गए. अब ये तीनों एंगल कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? फॉर अप्लाइंग साइन रूल फॉर ट्रायंगल IPQ. ओके, IPQ के यहाँ पे हम लोग ये तीनों वैल्यू लिखेंगे. IP के लिए एंगल कौन सा लिखना पड़ेगा बेटा? IP के लिए लिखना एंगल 69.97 डिग्री. ओके, IQ के लिए कौन सा एंगल लिखना? IQ के लिए लिखना एंगल 80.03 डिग्री. ओके, नाउ हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ IP. नाउ IP का वैल्यू कितना मिलेगा? यहाँ पे IP का वैल्यू मिलेगा वेट 0.939 मीटर. ओके, ये देखो मैंने 0.5 मीटर में कन्वर्ट करके लिया. पहले 50 सेंटीमीटर था तो आई हैव रिटन डाउन 0.5 इन अ मीटर. ओके, सो दैट आई गॉट द वैल्यू ऑफ IP इन अ मीटर. ओके, IQ का वैल्यू कितना चाहिए मुझे? IQ का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है 0.985 मीटर. ओके, आपका थोड़ा सा एक आध दूसरा सर्टन प्लस माइनस विल बी देयर, इट विल बी कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं चाहिए. ओके, वी गॉट द डायमेंशन IP and IQ over here. Now you check it guys. Okay, coming to this step again, coming back to this step again.
यहाँ पे हमें कौन से वैल्यू पता चले? अभी IQ का वैल्यू हमें पता चला है 0.985, ओके, into omega PQ. Okay, here we can get the value of omega PQ. ओमेगा PQ का वैल्यू भी हमें कितना मिल सकता है यहाँ पे? इट इज 3.295. ओके, ओमेगा ऑब्वियसली रेडियन पर सेकंड है ना, क्लियर? ओमेगा PQ का वैल्यू हमें मिला यहाँ पे 3.295 रेडियन पर सेकंड. ओके, नाउ वी जस्ट पुट इट इन दिस इक्वेशन. अभी VP के इक्वेशन में लिख रखेंगे वैल्यू. VP इज इक्वल टू IP का वैल्यू कितना मिला? IP इंटू ओमेगा PQ. ओके, VP का वैल्यू अभी कितना मिलता है देखेंगे. IP का वैल्यू है 0.939 इंटू ओमेगा PQ का वैल्यू मिला है 3.295. ओके, तो VP का वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ पे 3.094 मीटर पर सेकंड. ओके, तो here we have found out the value of VP and omega PQ. ओके, ओमेगा PQ का वैल्यू मिला हमें और ये VP का भी वैल्यू मिला. ओके, अगर VQ का वैल्यू चाहिए तो ओके, ऑलरेडी VQ का वैल्यू तो हमें यहाँ पे मिल ही गया था. इट वाज 3.246. गेटिंग इट? ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जांपल. तो एग्जाम में ऐसे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं. नॉट नेसेसरी कि हर टाइम आपको इजी क्वेश्चन ही पूछेंगे. ओके, तो वी हैव टू बी अलर्ट फॉर दैट. ओके, वी हैव टू बी अलर्ट टू आइडेंटिफाई द मेथड टू सॉल्व द एग्जाम्पल. ओके, वो प्रॉम्प्टनेस हम में होना चाहिए कि अगर कैसा भी एग्जाम्पल आ गया तो आवर ब्रेन शुड वर्क फास्ट एंड आइडेंटिफाई द टेक्निक टू सॉल्व द एग्जाम्पल. Okay, I hope this is clear to everyone. Kindly allow me to leave the meet and stop the lecture. Yes. See you in the next lecture, guys. Bye.